राज्य के दक्षिण 24 परगना जिला स्थित फलता में ऐश शिफा हॉस्पिटल एंड कार्डियक सेंटर पहले से ही अपनी कार्डियक सेवाओं के लिए अपने नाम का परचम लहरा रहा है। इसकी ख्याति इतनी है कि इस अस्पताल में इलाज कराने हेतु राज्य से बाहर यानी अन्य राज्यों के भी मरीज आया करते हैं। यहाँ अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती, सबके लिए समान चिकित्सा व्यवस्था है। चिकित्सक एवं परिचारिका सब समय सेवा कार्यों में तत्पर रहते हैं। यह इस अस्पताल की विशेषता है। यूनानी अस्पताल प्रबंधन की ओर से यहाँ अस्पताल परिसर में नर्सिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत की गई है ताकि लड़कियों के लिए नर्सिंग कोर्स उपलब्ध हो सके। इस कदम का मकसद स्थानीय युवाओं, खासकर महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कैरियर बनाने का अवसर देना है। इस नए नर्सिंग इंस्टीट्यूट में अस्पताल के साथ साथ नर्सिंग शिक्षा भी देना है, जहां छात्राओं को नर्सिंग शिक्षा और क्लिनिकल प्रशिक्षण मिलेगी। कोर्स में नर्सिंग की बुनियादी पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल अनुभव भी शामिल है। यहाँ छात्राओं के प्रशिक्षण के दौरान रहने, खाने पीने से लेकर लेबोरेटरी, लाइब्रेरी आदि की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हॉस्टल से लेकर लेबोरेटरी, लाइब्रेरी यानी पूरे कैंपस में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। छात्राओं की सुरक्षा के लिए अस्पताल प्रबंधन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षित लड़कियों के लिए अवसर प्रदान करने पर केंद्रित यह केंद्र स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान पेश कर रहा है। ऐसा कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। पेशेवर नर्स के रूप में अस्पताल पहले से ही अपने कार्डियक सेवाओं के लिए जाना जाता है और अब नर्सिंग प्रशिक्षण की शुरुआत से छात्रों को रोजगार की दिशा में भी मदद मिलेगी। नमस्कार, আমি ডক্টর সুনন্দ জানা, আমি আসিফা হসপিটালের সিইও। আসিফা হসপিটাল 2014 থেকে রান করছে এবং দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার প্রথম আইসিইউ যুক্ত হসপিটাল এবং দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার প্রথম ক্যাথল্যাব যুক্ত হসপিটাল এবং দক্ষিণ 24 পরগনার প্রথম সিটি স্ক্যান আমাদেরই উদ্বোধন হয়েছিল। আমাদের হসপিটাল সাধারণত গরিব এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্যই উন্মুক্ত এবং তারা স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে স্টেবিলাইজেশনের পরে তাদের সম্পূর্ণ অপারেশন বিনামূল্যে হয় এবং মেডিকেল প্রবলেমের জন্য ন্যূনতম খরচে আমরা ট্রিটমেন্ট করি এবং রোগী এবং রোগীর বাড়ির লোক এবং তাদের আশেপাশের সবাই কিন্তু আমাদের নিজস্ব মার্কেটিং টিম ব্যতি রেখে তারা নিজস্ব পরিচিতি এবং ভালোবাসা এবং শুভানুধ্যায়ী মাধ্যমে আমাদের হসপিটালে এসে হাজির হয় এবং আমাদের কাছ থেকে পরিষেবাগুলো গ্রহণ করে। हॉस्पिटल कब से शुरुआत हुई इसकी? 2014 সাল থেকে আসিফা হসপিটাল শুরু হয়েছে। প্রথমে ভাড়া বিল্ডিংয়ে একটা শুরু হয়েছিল এবং তারপরে আমরা ওই নিজস্ব জায়গার উপরে নিজস্ব বিল্ডিং এবং আমাদের নার্সিং হসপিটাল, প্যারামেডিক্যাল এবং ভবিষ্যতে অন্যান্য আরও ইনস্টিটিউশন গড়ার পরিকল্পনা আছে। আমাদের ক্যাথল্যাব শুরু হয়েছে এবং বেশ ভালোভাবেই চলছে এবং সিটিভিএস ইউনিট খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে এই মার্চ মাসেই এবং চোখের বিভাগ, ইএনটির বিভাগ, অন্যান্য বিভাগগুলোও দ্রুত খুব শুরু হবে। डॉक्टर, कई जगह देखते हैं कि कई हॉस्पिटल में चार्जेस बहुत सरप्लस होते हैं, यहाँ का चार्जेस कैसा है? क्या कुछ लिस्ट आप लोगों का लगा हुआ है यहाँ पे? लिस्ट लगा हुआ है, मैनेजर के पास सबसे लिस्ट है और सब থেকে মিনিমাম পরিমাণে আমাদের ট্রিটমেন্ট হয় এবং কিছু কিছু স্বাস্থ্যসাথীর অপারেশনগুলো মানে কার্ডিয়াক সার্জারিগুলো সম্পূর্ণ বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসাথীতেই হয়। তো এখানে বেশিরভাগ হার্টের যা প্রবলেম হয় ওর পেশেন্টের এখানে ট্রিটমেন্টটা চলে। হার্টের অপারেশন, হ্যাঁ, হার্ট এবং ব্রেন স্ট্রোক পেশেন্ট এবং হার্ট অ্যাটাকের পেশেন্টের ক্ষেত্রে পেশেন্ট স্টেবিলাইজ হওয়ার পরেই তাদের স্বাস্থ্যসাথীতে বিনামূল্যে একটা দুটো স্টেন্ট যার যেমন লাগে অপারেশন হয়, পেসমেকার বসানো হয় এবং কারো কারো ক্ষেত্রে এআইসিডি, সিআরটিপি এগুলো বসানো হয়। আশেপাশের সমস্ত পেশেন্টরা তো আসেই এবং দূর দূরান্ত থেকে আমাদের মালদা, মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার থেকেও অনেক পেশেন্ট এসে অনলাইনে যোগাযোগ করে আমাদের কাছে এসে সুস্থ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কলকাতার বাইরে, বুঝছো তো, কুচবিহার, कलकत्ता से भी लोग यहाँ पे आते हैं। হ্যাঁ,
কলকাতা থেকেও, হ্যাঁ কলকাতা থেকেও অনেক পেশেন্ট আসে, নদিয়া থেকেও অনেক পেশেন্ট আসে, যে কলকাতা পেরিয়ে বারাসাত থেকেও অনেক পেশেন্ট আসে। कलकत्ता में तो बहुत सारे हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ क्यों आते हैं, क्या खास वजह है? অ্যাকচুয়ালি কিছু ক্ষেত্রে আমাদের কস্ট একটা ইফেক্ট, এবং বাইরে কলকাতার হসপিটাল ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসাথী প্রযোজ্য হলেও তার জন্য এক্সট্রা কিছু ওরা কস্ট নেয়, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে আমরা এক্সট্রা কোনো হিডেন কস্ট নেই। স্বাস্থ্যসাথীতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পেশেন্ট যদি স্টেবিল থাকে সেক্ষেত্রে আমরা অপারেশন করিয়ে দিই, এবং আমাদের পেশেন্টদের অপারেশনের পরে আউটকাম খুব ভালো। কত স্টাফ আছে হসপিটালে? হসপিটালে আমাদের 150 জন স্টাফ আছে, এবং ডাক্তার, সিস্টার এবং পেশেন্ট এবং সিস্টার যে রেশিও সেগুলো গভর্নমেন্টের রুলস অনুযায়ী আমাদের এখানে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং থাকে, এবং সব কোয়ালিফাইড স্টাফ এবং নার্স আমরা এখানে। इमरजेंसी के 24 आवर्स होते हैं यहाँ पे अवेलेबल? 24x7 আমাদের এমার্জেন্সি খোলা থাকে, এবং কনসালটেন্ট ডক্টররাও প্রেজেন্ট থাকে। কখনো প্রেজেন্ট না থাকলেও অনকলের মাধ্যমে আমরা ডেকে নিয়ে পেশেন্টের পরিষেবা দিই। हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? আমরা বলবো যে আসিফা হসপিটালের কাছে যদি পৌঁছানোর আপনার সুযোগ থাকে, একবার অন্তত পরীক্ষামূলকভাবে আসুন, দেখুন, যাচাই করুন যে আসিফা হসপিটালের তরফ থেকে আমরা যা বলছি তার সত্যতা যাচাই করুন। কারণ আমরা মিথ্যে বা অনুরঞ্জিতভাবে কোনো কিছু বলে পেশেন্টকে অ্যাট্রাক্ট করতে করি না, এবং সেই হিসাবে আমরা আমাদের বিশেষ কিছু মার্কেটিংয়ের স্টাফ দক্ষতা না থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ডেডিকেশান এবং সঠিক চিকিৎসা এবং সঠিক এবং সুলভ চিকিৎসা এবং আমাদের প্রফেশনের আন্তরিকতা দিয়েই আমরা মানুষকে আমরা বুকে বেঁধে রাখার চেষ্টা করি। आखिरी सवाल है, यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अवेलेबल है क्या? गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, कोई भी ऑन कॉल में आता है, जो ऑपरेशन गायनी जो ऑपरेशन है कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो आते हैं। देखा गया है कि बहुत सारे हॉस्पिटल में जो है खून का जांच जो होता है वो बहुत महंगा लेते हैं, जांच में, ब्लड टेस्ट में, और अल्ट्रासोनोग्राफी का भी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे किस तरह के चार्जेस है? नॉमिनल चार्जेस है हम लोग का, और कुछ नॉमिनल चार्जेस है। आउटसाइड किस किस जगह में जो हार्ट का ये इकोकार्डियोग्राफी जो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इकोकार्डियोग्राफी अर्जेंट जो परीक्षा वो सुलभ मूल्य में होता है। कई हॉस्पिटल से घूमकर यहाँ आए हो ट्रीटमेंट कराने के लिए अपने पेशेंट, तो क्या खास वजह है यहाँ पे इस अशिफा में? आसिफा में होता है क्या, जो इधर का जो लो कॉस्ट और सैंगुइन ट्रीटमेंट है, बेस्ट ट्रीटमेंट मिलता है इधर। इस वजह से बाहर कोई पेशेंट चले जाते भी वो भी फिर से वापस आते। कुछ ऐसा कार्ड आपने जारी किया है जो मेंबरशिप कुछ कार्ड हो, ताकि उससे आए जो कॉस्ट आपका है उससे और कम हो, ऐसा कुछ कार्ड जारी किया आपने? ऐसा कुछ नहीं है, कंसेशन हम लोग ऑल पेशेंट को देता है, और वो बाद में स्टार्ट करेंगे। ट्रीटमेंट मिलता है जैसे नहीं सब फ्री वाला, जैसे हम लोग माहौल ऐसे रखने चाह रहा है जो कॉर्पोरेट वाला फीलिंग्स होगा गरीब पेशेंट को, ये पेशेंट ऐसे ना फील हो कि हम लोग गरीब है, हॉस्पिटल जैसे आया है गंदा है और साफ सुथरा नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं जो कॉर्पोरेट में जो वो लोग को जो मजा मिलता है ट्रीटमेंट फैसिलिटी का, जो एनवायरनमेंट, उस तक हम लोग इंशाल्लाह पहुंचेंगे। जो गरीब पेशेंट को कॉर्पोरेट का मौजा मिलेगा, और वो बिल दे पाए या नहीं दे पाए वो रास्ता हम लोग तैयार कर देंगे। 12 তারিখ থেকে আমার পেশেন্ট এখানে অ্যাডমিট করেছি। পেশেন্টের নাম মিনা বৈদ্য, হার্টের সমস্যা নিয়ে এখানে ভর্তি করেছিলাম, অপারেশন হয়ে গেছে, এখন পেশেন্ট খুব সুস্থ আছে। কিরকম ট্রিটমেন্ট হলো? সুন্দর ভালো ট্রিটমেন্ট হয়েছে। এখন কি কন্ডিশন কি আছে পেশেন্টের? ভালো কন্ডিশন আছে এখন। शिफा हॉस्पिटल, হ্যাঁ আসিফা হসপিটালে আমার পেশেন্ট খুব ভালোই আছে, ভালো পরিষেবা পেয়েছে। हॉस्पिटल হ্যাঁ আছে, ভালো পরিষেবা পেয়েছে, ভালো আছে। डॉक्टर सहयोग करे এখানে? হ্যাঁ डॉक्टर बाबू सहयोग ডক্টর সহায় করেন। পেশেন্টের কি হয়েছে? ওনার হাড়ের সমস্যা, সোমবার দিন বিকালে এমার্জেন্সিতে দেখানোর জন্য এসেছিলাম, তা
তা এসে ডক্টররা মনে করেছেন যে এখানে অ্যাডমিট করে নিলে ভালো হয়, তারপরেই অ্যাডমিট করা হয়েছে। কিন্তু তারপরে বুধবার দিন ওটি হয়েছে। এখানে পরিষেবা খুব সুন্দর, দারুণ। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে হয়েছে, আর পরিষেবা বা যেখানে ব্যবস্থা, আর পেসমেকার বসেছে। ডাক্তারবাবু বা এখানে যে আয়া নার্স তাদের ব্যবহার কেমন? খুব ভালো, খুব ভালো পরিষেবাও ভালো। হ্যাঁ, পেশেন্টের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেও ওনারা বলছেন যে খুব ব্যবস্থাপনা খুব ভালো। এখন কন্ডিশন খুব ভালো আছে। ছুটির কথা বলেননি, কিন্তু ডিসচার্জের কথা এখনও বলেননি। আর পরিষেবা খুব ভালো, খুব সুস্থ আছে। হ্যাঁ, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমেই। হ্যাঁ, কার্ডে যেমন সিস্টেম অনুযায়ী সেরকমভাবেই হয়েছে। আমার পেশেন্টের ওই হার্টের সমস্যা ছিল। আজ সেকেন্ড ডে আমরা প্রথমে ডায়মন্ড হারবারে নিয়ে গেছিলাম। ওখান থেকে ওরা বললো পেশেন্টের অবস্থা ভালো না। তখন আমরা এটা আগে জানতাম না, আমরা দূর থেকে আসছি অনেক। শুনলাম এখানে খুব হার্ট নিয়ে খুব ভালো ট্রিটমেন্ট হয়। তো এসে দেখলাম, যা শুনেছি সেটা বাস্তব মিলেছে আমাদের সঙ্গে। দেখেছি টোটাল এখানকার যে স্টাফ থেকে টোটালি কালকে যা ব্যবহার দেখলাম, সেটা একটা রুগীর জন্য খুব ভালো, একটা মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন করে রুগীর জন্য। হার্টের সমস্যা ছিল, এখন হচ্ছে আজ সেকেন্ড ডে। মানে অল্প সময়ের মধ্যে যা দ্রুত দেখলাম রিকভারি হয়েছে, খুব আমরা নিজেরাই খুব খুশি আর কি, পরিবারের সবাই খুশি। আশা করছি না, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড এখানে আমরা সাহায্য পেয়েছি। হ্যাঁ, পেশেন্টের সঙ্গে কথা বললাম, আমরা কালকে ছিলাম, পেশেন্টের কথা বললাম। পেশেন্ট এখন নিজেকে খুব ভালো করছে, অনুভব করছে, এবং পেশেন্ট নিজেকে খুব কিওর ফিল করছে। স্টেপ টোটালটাই দেখলাম, টোটাল মানে কি বলবো, সিকিউরিটি থেকে শুরু করে টোটালটাই মানে যা ব্যবহার করছে আমাদের সঙ্গে অতুলনীয় ব্যবহার। এইভাবে উচিত, একটা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এইভাবেই উচিত। হ্যাঁ, মানুষ অন্তত খুশি হতে পারে যে আমার পেশেন্টটা একটা নিরাপদ জায়গা আছে। কি কষ্ট হচ্ছে? কষ্ট হচ্ছে বাবা, কষ্ট হচ্ছে। সময় পানি ছাড়া আর জল পি একটু। ডাক্তারবাবু, এই পেশেন্টটার কি হয়েছে? কোনটা? এই পেশেন্টটার আমাদের এখানে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে ফ্রিতে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করা হয়েছিল। আচ্ছা, কিন্তু যেটা প্রবলেম এখন পেশেন্টদের, আপনারা মিডিয়ার লোক কনসাসনেস অ্যাওয়ার করা জরুরি। যেমন এই যে ফ্রিতে একটা 2 লাখ টাকার অপারেশন হলো, লোকে ভুলে গেল। যদিও জায়গা জমি বেচে অপারেশনটা করতো তাহলে ভুলে যেত না। ভদ্রলোক কি করেছেন, অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি হওয়ার পরে 2-1 দিন প্রথম দিকে ফলো আপ থাকার পরে, লাস্ট কবে ফলো আপ ছিল? 2025 মার্চ। 2025 মার্চ, মতলব মানে মোটামুটি লাস্ট 8 to 10 মান্থ কন্ট্যাক্ট মে নেই। এবং তার সাথে ডিসকন্টিনিউ মেডিকেশন, নিজে মেডিসিন বন্ধ করে দিয়েছে। তো এটা অ্যাওয়ারনেসে নিয়ে আসতে হবে যে গভর্নমেন্ট প্রজেক্টের মাধ্যমে সে যে ভ্যালুয়েবল ট্রিটমেন্টটা পাচ্ছে, যেটা তার লাইফ সেভিং, কিন্তু যেহেতু তার খরচা হয়নি, তাহলে সে মনে করছে যে এই চিকিৎসাটা আমি ফ্রিতে পেয়ে গেছি, এর কোনো দাম নেই। तो हम ये कहने चाहेंगे आप लोगों को, जो पेशेंट का हार्ट का बीमारी है उसको पूरा जिंदगी भर कुछ दवाई लेना पड़ता है। वो गवर्नमेंट की जारिया से या और कोई एनजीओ की जारिया से जो अच्छा वाला ट्रीटमेंट सस्ता में मिल जा रहा है, वो उसको भाव नहीं दे रहा है। वो क्या कर रहा है, कुछ दिन उसको दवाई ले रहा है, जब वो पूरा सही हो गया, चलना फिरना ठीक हो रहा है, वो अपने आप ने सोचना शुरू कर दीजिए दवाई की कोई जरूरत नहीं है, हम तो अभी ठीक हो गए। और इस हालत में वो जब 6-7 महीने ऐसे चलते रहते, फिर अचानक दोबारा फिर हार्ट अटैक आ जाते हैं और फिर पेशेंट को प्रॉब्लम आ जाते हैं। और गवर्नमेंट को पॉलिसी का कुछ ऐसे रहता है, जैसे एक साल में एंजियोप्लास्टी हो जाने की बात दूसरा बार नहीं करने का ये है, मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में अप्रूवल और रिकमेंडेशन नहीं रहता है। तो ये हम लोगों को हम लोग पहले इंग्लिश में डिस्चार्ज हमारी देते थे, अब हम लोग बंगाली में भी लिख देते हैं ताकि वो बोल ना पाए जो हम लोग पढ़ नहीं पाए, इसलिए तो लिख देते हैं कि आप अगर अपने आप से दवाई बंद कर देंगे तो आपका जो हार्ट का बैलून सर्जरी हुए उसमें जो स्केल लगे हैं, चाहे वो दुनिया का जितना भी बेहतर दे, दवाई बंद करने से वो ब्लॉक हो जाने का चांस है। तो ये पेशेंट को वही हालत है, लास्ट 8-10 महीने हॉस्पिटल में बिल्कुल आया नहीं है, डॉक्टर नहीं दिखा। डॉक्टर नहीं दिखाने का ये जैसे एक प्रॉब्लम है, उससे और बड़ा प्रॉब्लम है कि खुद दवाई बंद कर दी। अगर ऐसे होता जो दवाई कंटिन्यू चला रहे थे तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं यही आप लोगों को, जो पेशेंट है हार्ट का मरीज, उसको हम ये कहेंगे या सलाह देंगे कि पेशेंट अपने आप से कोई भी दवाई बंद कर देना नहीं चाहिए, तो उसके फिर दोबारा हार्ट का अटैक आने का चांस है। जैसे आपका सामने जो पेशेंट हुए है वही प्रॉब्लम है। খাচ্ছেন না তো নাকি? তা কেন খাচ্ছেন না? কে বারণ করলো আপনাকে? তা বারণ করেনি, আপনি যখন জানেন হার্টের অপারেশন হয়েছে, আপনি জানেন তো হার্টের অপারেশন হয়েছিল,
বেলুন সার্জারি হয়েছিল, এখানে হয়েছিল তো, কার্ডের আওতায় হয়েছিল তো, তাহলে আপনার ফ্রিতে চিকিৎসা দেওয়া হলো, আপনি এলেন না, ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। যে স্টেনটা দেওয়া আছে সেটা क्या हुआ है बाकी स्टोन का पेशेंट है, ओपीडी में फॉलो अप में आया है। अच्छा अच्छा वो हम लोग ये हमारे घर भर्ती थी, एडमिट हुए, ठीक है, और इसको मतलब क्या है, हम लोग का जो ब्रेन में नस रहता है वो फट जाते हैं प्रेशर और ये सब वजह से, और पेशेंट का जो हालत था बाँचने का उम्मीद नहीं था, तो फिर एक एडमिट हुए थे, जैसे होता है 8-10 दिन ट्रीटमेंट दिया। हम लोग मेडिसिन वाला डॉक्टर है, साथ में न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरो सर्जन भी था, तो वो फिर पेशेंट ठीक होके घर गए, और फिर आज आया है वो न्यूरोलॉजिस्ट को ओपिनियन लेने के लिए आया है। तो फिर ये पेशेंट का डिस्चार्ज देखिए, हम लोगों के पास ये एडमिट थे पेशेंट, ये एडमिट हुए थे हेमोरेजिक ब्रेन स्ट्रोक लेके दिसंबर 9 तारीख में, और 20 तारीख में ये पेशेंट हम 20 तारीख में ये पेशेंट डिस्चार्ज हुए थे। उसको बाद वो पेशेंट फॉलो अप में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डॉक्टर देख रहा है, ये डॉक्टर चयन मंडल, ही इज आवर न्यूरो मेडिसिन डॉक्टर। हम लोग को जो मेडिसिन का डॉक्टर है, ये एक चीज आप लोग को हम बताएंगे, ये पेरिफेरल में है, ये पूरा पंचायत एरिया है, यहीं पे भी जो डॉक्टर देखते हैं ऐसे नहीं है जैसे सिर्फ मेडिसिन वाला डॉक्टर देख रहा है। हम लोग मेडिसिन डॉक्टर की ऊपर में जो सुपर स्पेशलिटी विंग होता है, जैसे डीएम न्यूरोलॉजिस्ट और एमसीआई न्यूरो सर्जन, दोनों ही डॉक्टर उनको देखे हैं। डॉक्टर चयन मंडल है और दूसरा डॉक्टर है डॉक्टर चिरंतन बैनर्जी। तो मतलब हम लोग को यहीं पे भेलोर का जो ट्रीटमेंट सिस्टम है, जैसे एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर मिल के पेशेंट देखना, हम लोग ये वाला चीज चालू किए हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में डॉक्टर लोगों को ईगो रह जाता है, एक डॉक्टर दूसरा डॉक्टर से मशवरा करने में सोचते हैं जे हम क्यों उसको पूछेंगे, मगर आशिफा इज द पहले हॉस्पिटल है जो हर एक पेशेंट के लिए, कलकत्ता में जो होता है जो अमीर पेशेंट है उसके लिए बोर्ड ऑफ डॉक्टर बैठते हैं और बुलेटिन तैयार होते हैं, मगर गरीब लोगों के लिए नहीं बोर्ड बैठते। हम लोग आशिफा हॉस्पिटल में हर एक पेशेंट के लिए मिनिमम 5 डॉक्टर रखे, 2 मेडिसिन का है, 2 सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी है, 2 न्यूरोलॉजी है, एक न्यूरो सर्जन न्यूरो मेडिसिन, मतलब एक पेशेंट को उसका एडमिशन की टाइम में मिनिमम 5 डॉक्टर देखेगा, जो बोर्ड ऑफ डॉक्टर के तौर पर एक गरीब पेशेंट को बोल रहा है। हम लोगों का अमीर और गरीब का कोई भेदभाव नहीं है, तो वो पेशेंट को 5 डॉक्टर की एक साथ उसका मशवरा और बोर्ड की तरीके से वो पेशेंट को सर्विस मिलता है। उनको घर वाला अपनी क्या होने ना আপনার স্বামী উনি এখানে ভর্তি ছিলেন, তো উনি যে অবস্থায় এসেছিলেন, আর আপনি এদিকে সরে আসুন, যে অবস্থায় উনি এসেছিলেন আর ওনাকে যে অবস্থায় নিয়ে গেছেন, হাসপাতাল কতটা সার্ভিস দিয়েছেন কিভাবে আপনারা সেটা বলুন, কারণ আমি বললে হতে পারে আমি হাসপাতালের লোক বেশি বলছি, আপনি বলুন। যে অবস্থা হয়েছিল, জি হ্যাঁ, আগের থেকে একদমই খুবই অবস্থা খারাপ হয়েছিল, এখানে নিয়ে আসার পরে অনেকটা সুস্থ হয়েছে। जैसे आया था तो अभी अच्छा फील हो रहा है। ये ब्रेन हेमोरेज पेशेंट है जिसको बचने का उम्मीद नहीं था, वो पेशेंट खुद बोल रहा है कि मैं अभी अच्छा है, मैं डॉक्टर क्या बोलूं, वो सबसे बड़ा एविडेंस वही है। तो इसलिए हम लोग का जो हॉस्पिटल है, जो क्रिटिकल केयर का चीज है, जो हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, जो न्यूमोनिया, ये सब पेशेंट के लिए जो गरीब है वो लोगों के लिए हमेशा सस्ता से सस्ता हम लोग देते हैं। ये पेशेंट अगर अपोलो या कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो उसका मिनिमम जो खर्चा होगा वो बियर करने का उनको औकात नहीं है, और उसको मिनिमम 100 से कम गुण कम खर्चा में हम लोग वो पेशेंट को आपका सामने वापस ला रहा है और पेशेंट से खुद आपसे बात करवा रहा है।